Yes, good morning to all of you. Take out your English literature book. Yes, take out your English literature book. First chapter. Today we will do revision of first chapter. Whose mic is on? Dipali Verma. Dipali, yes. Okay. Okay. So today we will do revision of first chapter, and this will be the last revision day. From tomorrow we will do the poem. Okay, chapter 3 and chapter 5. Today, tomorrow, in tomorrow's class we will cover poem. Okay, so let's start. माइक सब लोग अपना ऑफ कर लेंगे. किसी किसी का माइक बीच बीच में ऑन हो रहा है. दीपाली वर्मा. Again and again I am not going to say use the same thing. दीपाली वर्मा हो रहा है. ऑफ नहीं हो रहा है. ठीक है, मैं यहाँ से ऑफ कर दे रही हूँ, उसके बाद आप ऑन मत करिएगा. चलिए. Read the following story and find out how the narrator's daddy decided what he wanted to be. But I think before we start the chapter, we should go through the pre-reading task of this chapter. So let's start with the pre-reading task. What is your father profession? I think every one of you must know what is your father profession. कुछ के father businessman होंगे, कुछ के service करते होंगे, government job, private job, है ना? What profession would you like to choose? And it's up to you that what profession you will choose for yourself. Definitely there are various professions which you will choose for your there are different professions which you will choose for yourself, like someone like to be an engineer, someone like to be doctor, IAS, different. चलिए. Am I audible to everyone? सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही है सभी को? Okay. So the third question is, what is the reason of your choice? Suppose you have chosen that in future you want to be an engineer or you want to be a doctor. Then the next question arises is, what is the reason of your choice? There must be a certain reason behind your every choice or behind your any choice. किसी भी चॉइस के लिए आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि आपने ये क्यों चुना है. Suppose if someone wants to be a teacher, someone wants to be a doctor, why he has chosen that profession? आपने क्यों वो प्रोफेशन चुना है? सबका अलग अलग रीजन हो सकता है ना? तो यू मस्ट नो द रीजन बिहाइंड योर चॉइस. आपको अपना रीजन जरूर पता होना चाहिए कि आपने जो भी चॉइस किया है, जो भी चूज किया है, वो क्यों चूज किया है. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let's start the chapter. When Daddy was little, he was often asked, what do you want to be when you grow up? When you grow up, Daddy always had an answer ready, but each time his answer was different. इस स्टोरी से राइटर हमें बताना चाह रहे हैं कि जब उनके डैडी छोटे थे, बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो उनसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता था दैट व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू विल ग्रो अप, व्हाट डू यू वांट टू बिकेम व्हेन यू विल ग्रो अप. तो वो हमेशा उनका आंसर रेडी होता था देने के लिए. जब भी कोई पूछा क्या बनना चाहते हो, फट से बोल दे. बट द प्रॉब्लम इज दैट every time his answer was different. हर टाइम उनका आंसर जो होता था वो डिफरेंट होता था.
At first, Daddy wanted to be a night watchman. शुरुआत में वो क्या बनना चाहते थे? Night watchman. As I told you that you must know the reason behind your choice. तो इनके भी इसके पीछे नाइट वॉचमैन बनने के भी पीछे इनका कुछ रीजन था. What was the reason? He liked to think that while the whole town was asleep, the night watchman was up. वो ऐसा सोचते थे, नाइट वॉचमैन तो कोई नहीं बनना चाहता है, लेकिन वो बोल रहे थे कि वो नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे. तो इसके पीछे रीजन था. रीजन क्या था कि वो सोचते थे कि जब पूरा टाउन सो जाता है, जब सारा पूरा का पूरा शहर सो जाता है, एक अकेला नाइट वॉचमैन होता है जो जागता रहता है. And he liked to think that he could make a noise when everyone was sleeping. He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up. तो भाई सो जाता है तो इससे क्या हुआ, सारा शहर सो जाता है, वो जागे रहता है नाइट वॉचमैन. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? But apart from that, he was also thinking that he can make a loud noise when everyone was sleeping. उसके अलावा वो ये भी सोचते थे कि नाइट वॉचमैन ही अकेला होता है जो जागा होता है. तो वो जब सब कोई सोया हुआ होता है तो वो जितनी मन चाहे उतना लाउड नॉइज क्रिएट कर सकता है. Nobody will stop him. कोई भी उसे रोकेगा नहीं. So उसने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था when he will grow up, he will become a night watchman. But then an ice cream man came along with his bright green cart. Why he could push a cart? He could eat all the ice cream he wanted to do. क्या हुआ? अचानक से फिर एक दिन उनके सामने एक आइसक्रीम सेलर आ गया जो अपने ग्रीन कार्ट को लेकर के जा रहा था. तो ये क्या सोचता है, ये जो आइसक्रीम सेलर है ये ग्रीन कार्ट को पुश क्यों कर रहा है? Why he is pushing his cart? इसके लिए तो बहुत अच्छा है कि पूरी आइसक्रीम इसके पास है. क्यों ना ऐसा हो कि ये पूरी आइसक्रीम ही खा जाए. इसे जाकर इसको सेल करने की जरूरत ही क्या है? I will eat a stick of ice cream for everyone I will sell, Daddy thought, and I will treat all little children to free ice cream. अब ये सोच रहा है, अगर मेरे पास ये गाड़ी होती, मैं आइसक्रीम बेच रहा होता, तो मैं जितनी आइसक्रीम बेचता उतनी बार मैं एक स्टिक आइसक्रीम मैं भी खाता. मतलब अगर एक बेचता तो एक मैं भी खा लेता, फिर बेचता फिर एक मैं खा लेता. तो इस तरह से ये सोच रहे थे कि अगर मैं होता तो ऐसा करता. और साथ ही साथ और क्या बोल रहे हैं कि जितने भी लिटिल चिल्ड्रन हैं सबको मैं फ्री में ट्रीट देता आइसक्रीम की. Little Daddy's parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream man. Little Daddy जो थे वो बहुत, Little Daddy के जो पेरेंट्स थे वो बहुत सरप्राइज हुए ये बात सुनकर that their son wanted to be an ice cream man. उनका बेटा आइसक्रीम मैन बनना चाहता है. ये सुनकर के Little Daddy बहुत सरप्राइज्ड हुए. It was quite funny for them, but he thought it would be a very tasty way of being grown up. ये उनके लिए काफी फनी का चीज था. मतलब क्या रे, ये आइसक्रीम बेचना चाह रहा, अच्छा बच्चा है, हो सकता है ऐसा सोच रहा होगा, लेकिन डैडी जो थे उनके लिए ये काफी टेस्टी तरीका था बड़ा होने का. मतलब कि वो ये सोच रहे थे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरा जो अडल्टहुड रहेगा, मेरा जो प्रोफेशन रहेगा वो काफी टेस्टी रहेगा, बिकॉज आई वाज सेलिंग आइसक्रीम एट दैट टाइम एंड I will eat each stick of ice cream I will sell. मतलब हर एक आइसक्रीम बेचने के बाद एक आइसक्रीम मैं भी खा लूंगा. यहाँ तक स्टोरी समझ में आई आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes. Okay. Then one day Little Daddy saw a man at the railway station. The man kept playing with the cars and locomotives. एक दिन अचानक क्या हुआ, डैडी जो थे वो रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को काम करते देखे. उन्होंने क्या देखा कि वो जो आदमी है वो कार और कुछ लोकोमोटिव्स मतलब इंजन वगैरह से, रेलवे इंजन वगैरह से कुछ खेल रहा है, कुछ प्ले में करने में लगा हुआ है. But these were real cars and real locomotives. लेकिन वो जिस चीज से खेल रहा था, that was not a toy car or toy engine. Rather, that was the real car and real locomotives. He would jump on the platform and crawl under the cars, playing a strange and wonderful game. उसको क्या लग रहा था कि ये तो खेल रहा है, प्लेटफॉर्म पे जंप कर रहा है, घुड़क के अंदर जा रहा है कार के अंदर,
कुछ काम कर रहा है, कुछ खेल रहा है, फिर कूद के इंजन की तरफ आ जा रहा है, फिर कूद के कार की तरफ चला जा रहा है, फिर बाहर निकल करके प्लेटफॉर्म की तरफ आ जा रहा है. So that he was thinking that the man was playing with cars and locomotives, but the truth was that the man was doing his work. Who that man? Daddy asked. Daddy उसको देखकर बहुत सरप्राइजिंगली वे में पूछे, Who that man is? He is the shunter. He was told. उनको बताया गया कि वो एक shunter है. Now little daddy knew that what he wanted to be. Just think, he would shunt railway cars. Where what in the world could be more interesting? Nothing obviously. और little daddy सोच, अच्छा ये शंटर है, ये काम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब क्या है, वो ये सोचने लगे कि वो बड़े होके शंट करेंगे, शंटिंग का काम करेंगे, शंटर बन जाएंगे. He will shunt railway car. इससे ज्यादा और इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है? कुछ नहीं, ऑब्वियसली. इससे ज्यादा और इंटरेस्टिंग काम क्या होगा कि खेलते खेलते मेरा काम निकल जाएगा. When daddy said that he would be a shunter, someone asked him, what about the ice cream? अब जब उनसे किसी ने पूछा क्या बनना चाहते हैं बड़े होके, तो उन्होंने बोला now I want to be a shunter. तभी पीछे से किसी ने उनको चिढ़ाते हुए बोला, but what about the ice cream? फिर आइसक्रीम का क्या होगा? तुम तो बोले थे कि तुम आइसक्रीम मैन बनोगे. This was a problem. Daddy had decided to become a shunter, but he did not want to give up the bright green ice cream cart. At last he found a way out. अब जब उनको कोई बोला कि फिर आइसक्रीम मैन का क्या होगा, तो ये सोच करके वो काफी कंफ्यूज्ड हो गए. अरे हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं कि अगर हम शंटर बन जाएंगे तो आइसक्रीम का क्या होगा. क्योंकि वो उस ब्राइट ग्रीन कार्ड को छोड़ना नहीं चाहते थे. ही डोंट वांट टू लीव दैट ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ड. सो उन्होंने इसका एक तरीका निकाला. ही गॉट एन आइडिया इन हिज माइंड. व्हाट वाज द आइडिया? I will be a shunter and an ice cream man both. उन्होंने क्या आइडिया निकाला? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं शंटर और आइसक्रीम मैन दोनों बन जाऊंगा. कैसे बन जाऊंगा? चलिए आगे जानते हैं. Everyone was surprised, but little daddy explained it all quite clearly. That's not hard at all. सब लोग ये बात सुन के बहुत सरप्राइज थे कि अरे ये क्या बोल रहा है कि ये शंटिंग का भी काम करेगा and he will sell ice cream also. How it could be possible? But everyone was very surprised to hear this. But the little daddy explained it very quietly and very peacefully, very clearly, that it's not at all a hard work. I can shunt car and even I can sell ice cream also. How? After selling it for a while, I will sell ice cream in the morning. After selling it for a while, I will go to the station. There I will shunt some car and go back to sell some more ice cream. Then I will go back to the station and shunt the car again. And then I will sell some more ice cream. It would not be hard because I will park my car near the station and I won't have far to go to the train. बताइए कितना इजी सॉल्यूशन इन्होंने निकाला डैडी ने कि it won't be a difficult task. First, I will sell some ice cream. Then go for the station. Will shunt some car. Again, I will back to my green cart. Again, sell some more ice cream. Then again back to the station. फिर वहां जाके कुछ कार को शंट करूंगा, फिर वापस आकर आइसक्रीम बेचूंगा और इस तरह से करके मेरे लिए ये काम इजी हो जाएगा. एक बार आइसक्रीम बेचूंगा, फिर कार शंटिंग के लिए स्टेशन चला जाऊंगा. एंड हाउ इट कुड बी पॉसिबल? It can only be possible. I will park my green cart near the station. मैं अपने green cart को स्टेशन के पास ही लगा दूंगा ताकि मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, बस स्टेशन के अंदर और बाहर आना जाना पड़ेगा. यहाँ तक समझ में आया आप लोग सभी को? अच्छा बताइए, जो डैडी सोच रहे थे क्या वो पॉसिबल था? एट द सेम टाइम did he able to do two work simultaneously at the same time? No ma'am. No ma'am. Yes, of course not. अब देखिए उनकी बात को सुन करके सब लोग क्या बोलते हैं. Everyone laughed again. Then the little daddy got angry and said, जब उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो सभी उनकी बात सुन करके जोर से हंस पड़े. जब सभी लोग हंसे तो डैडी को गुस्सा आ गया. बच्चे थे, कोई भी उनकी बात पे कुछ बोलेगा तो उनको गुस्सा आएगा, तो उनको गुस्सा आ गया. अब गुस्से में उन्होंने क्या बोला देखिए, if you are going to laugh at me, I will be a night watchman beside. After all, there's nothing to do at night.
अब कि अगर आप लोग इस तरह से हंसोगे, हेलो मेरी आवाज आ रही है? यस अगर आप लोग अगर आप लोग इस तरह से मुझ पर हंसोगे, इफ यू ऑल विल लाफ एट मी, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं रात में नाइट वॉचमैन का भी काम कर लूंगा। आफ्टर ऑल नाइट में करने को कुछ है नहीं, नाइट में करने को कुछ भी नहीं है। देन आई विल डू द ड्यूटी ऑफ नाइट वॉचमैन इन द नाइट। नाइट में मैं नाइट वॉचमैन का काम करूंगा, फिर एक ही साथ मैं 3 प्रोफेशन में जुड़ जाऊंगा। It was all settled, but then Daddy wanted to be a pilot. अब डिसाइड हो गया कि ठीक है भाई, डैडी को जो मन है वही करेंगे। लेकिन अचानक से डैडी का इमीडिएटली फिर से माइंड चेंज हो गया। नाउ ही वांटेड टू बी अ पायलट, देन ही वांटेड टू बी एन एक्टर। फिर से उनका माइंड चेंज हो गया, नाउ ही वांटेड टू बी एन एक्टर। बट आफ्टर ग्रैंडपा टुक हिम टू अ फैक्ट्री, ही डिसाइडेड टू बी अ टर्नर। फिर एक दिन अचानक क्या हो गया, डैडी के जो ग्रैंडपा थे, मतलब डैडी के जो दादाजी थे, वो उनको एक दिन फैक्ट्री ले गए। वहां पे कुछ टर्नर्स को देख करके उन्होंने क्या बोला कि नाउ आई विल बिकम अ टर्नर। टर्नर कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं जो फैक्ट्री के मशीन को ऑपरेट करते हैं। बिसाइड ही वांटेड टू बी अ सेलर। उस दिन के बाद वो बोलने लगे आई विल बिकम सेलर व्हेन आई ग्रू अप। सेलर जो शिप को चलाते हैं। Or at last a shepherd and spent his days walking about with the cows, cracking his whips loudly. और लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि मैं शेफर्ड बन जाऊंगा, जानवरों को लेकर के फील्ड में चराऊंगा, चरवाहा जिसको कहते हैं, है ना। Finally he decided that he really wanted to be a dog, and last was the worst one. Lastly उन्होंने क्या डिसाइड किया? That he wanted to be a dog. अब बताइए, ये क्या सही बात है? एक इंसान जो है वो डॉग बनना चाह रहा है। इज इट ट्रू? इज इट राइट? नो बट डैडी जो थे वो तो डैडी थे, जिद्दी थे, क्योंकि उस समय बच्चे थे, चाइल्डहुड स्टेज में थे, बच्चे थे, उन्हें बस कुछ चीज देखते तो बस सोचते कि मैं बड़ा होकर यही बनूंगा। सो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया दैट ही वांटेड टू बी अ डॉग। All that day he ran around all the forts barking at the strangers. इससे भी ज्यादा वर्स्ट क्या हुआ, उन्होंने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो अपने चारों लेग्स से दौड़ने लगे। अब 4 लेग्स कहाँ से आएंगे? तो 2 हाथों को उन्होंने अपना 2 हैंड्स को उन्होंने लेग में कन्वर्ट कर लिया और क्रॉल करके वो चलने लगे। उसी तरह से वो दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगे। स्ट्रेंजर्स को देख के भौंकना शुरू कर दिया उन्होंने। He even tried to bite an elderly lady when she wanted to pat his head. मैम स्ट्रेंजर मतलब स्ट्रेंजर अनजान, 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 अजनबी लोग। रास्ते पर जब कुत्ते जो होते हैं वो किसी अजनबी को देखते हैं तो वो भौंकते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह से स्ट्रेंजर्स को देख करके डैडी जो थे वो भौंकना शुरू कर दिए। और उससे भी बुरा तब हुआ जब एक ओल्ड लेडी जो थी उनके पीठ पर थपथपाने आ रही थी, पैट करने आ रही थी। पैट मतलब होता है थपथपाना। हेड पर जब उनके पैट करने आ रही थी तो उन्होंने उसको काटने की कोशिश की। He tries to bite her. Little Daddy learned how to bark very well, but he could not learn how to scratch behind his ears with his foot. अब जो थे लिटिल डैडी वो भौंकना बहुत अच्छे से सीख चुके थे, बार्क करना बहुत अच्छे से सीख चुके थे। बट वन थिंग दैट ही वाज अनेबल टू लर्न इज दैट हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर्स थ्रू हिज फूट। अपने पैर से अपने कान के पीछे वो ईचिंग कैसे कर सकते हैं, ये उनको नहीं आ रहा था, ये वो सीख नहीं पा रहे थे। दो ही ट्राइड वेरी हार्ड, हालांकि इस चीज को सीखने के लिए उन्होंने बहुत टफ मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क किया। He thought that if he went outside and sat next to the rover, he would learn more quickly. That's exactly what he did. उन्होंने अब सोचा, अच्छा ऐसा बहुत अच्छा रहेगा कि मैं बाहर जाके अपने कुत्ते रोवर के साथ बैठ जाता हूँ और वहीं पर जाकर के मैं उससे सीखता हूँ that how to scratch behind the ears with the help of foot. मैं ये करना उसके साथ बैठकर सीख सकता हूँ। और वो क्या किए, डैडी क्या किए, मतलब कि बाहर जाकर के रोवर के साथ ही बैठने लगे। रोवर उनके कुत्ते का नाम है। इससे उन्होंने सोचा कि वो जल्दी सीख जाएंगे इस तरह से। Just then an officer came walking down the street. तभी वहां पे क्या हुआ, एक ऑफिसर
वहां पे घूम रहा था, उसी स्ट्रीट से वो गुजर रहे थे, उन्होंने डैडी को देखा। He stopped and looked at the daddy. वो थोड़ी देर के लिए वहां रुके and he started looking at the daddy. वो डैडी को देखने लगे। He watched him for a while, then he asked. थोड़ी देर के लिए रुक करके वो वहां पे उसको देखे, डैडी को देखे, और उसके बाद वो उनसे मतलब रुके, थोड़ा देखे, उसके बाद वो उनसे पूछे, What are you doing? The officer asked to the daddy, What are you doing? I want to be a dog, little daddy said. Then little daddy replied that I want to be a dog. Don't you want to remain human? तभी ऑफिसर ने पलट करके उनसे क्वेश्चन किया, क्या तुम कुत्ता बनना चाहते हो, तुम डॉग बनना चाहते हो? डोंट यू वांट टू रिमेन ह्यूमन? तुम ह्यूमन बने रहना नहीं चाहते हो? ये तो बड़ा अजीब बात है जी, तुम इंसान में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम डॉग बनना चाहते हो, क्या तुम इंसान बने रहना नहीं चाहते हो? I have been a human being for a long time, Daddy said. डैडी ने कहा नहीं, मैं नहीं बना रहना चाहता इंसान, क्योंकि मैं इंसान बहुत लंबे समय से मैं इंसान ही बना हुआ हूँ. Now I wanted to be a dog. What sort of human being are you if you cannot even be a dog? Is that what a human being is like? उस ऑफिसर को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया है, इंसान है बोलता है कुत्ता बनना चाहते हैं. तो वो बड़ा ही अजीब तरीके से डैडी को जवाब दिया. वो डैडी को क्या बोलता है, कैसे इंसान हो तुम जो कुत्ता भी नहीं बन पा रहे हो? What sort of man you are if you can't even be a dog? अगर तुम कुत्ता नहीं बन सकते तो तुम कैसे इंसान हो? फिर तुम्हारा इंसान बनने का मतलब भी क्या है, फायदा ही क्या है, किस टाइप के इंसान हो तुम, कैसे इंसान हो जी? What is he like? Daddy asked. डैडी पूछता है, अच्छा आपके बोलने का मतलब क्या है? You think about it yourself, the officer said and walked away. ऑफिसर बोला, हम क्या बताएं कि मेरे बोलने का क्या मतलब है, तुम सोचो कि मेरे बोलने का क्या मतलब है, किस तरह के तुम इंसान हो कि तुम एक डॉग भी नहीं बन पा रहे हो. What sort of man you are? तो तुम खुद समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. He was not laughing and did not even smile. वो हंस नहीं रहा था, वो जो ऑफिसर था वो डैडी को देख के हंस नहीं रहा था, इवन वो छोटा सा स्माइल भी नहीं दिया. बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. लेकिन यही तरीका था जिसकी वजह से लिटिल डैडी को समझ में आ गया, उनको शर्मिंदगी फील हुई, उनको शर्म आई कि अरे सच में मैं कैसा इंसान हूँ जो मैं कुत्ता बनने के लिए सोच रहा हूँ, मैं डॉग बनने के लिए सोच रहा हूँ, ये तो बिल्कुल सही नहीं है. इफ आई एम बोर्न एज ए ह्यूमन बीइंग, आई शुड be a human being. I should not thought to be a dog. And he began to think. और वो सोचना शुरू कर दिए. He thought and more he thought. वो सोचते रहे और सोचने लगे. The more ashamed he was of himself. और उनको जितना ज्यादा वो सोच रहे थे उतना ज्यादा उनको अपने आप पे शर्म आ रही थी. The officer had not explained anything to him, but he suddenly understood that he could not change his mind every day. ऑफिसर ने उनको कुछ नहीं समझाया, बस उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यही एक क्वेश्चन था जिससे डैडी समझ चुके थे कि नहीं मैं गलत था, मुझे हर दिन अपना माइंड नहीं चेंज करना चाहिए कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा. एंड व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही रियलाइज्ड दैट ही वाज टू स्मॉल टू नो व्हाट ही वांटेड टू बी. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो ये समझ गए कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ ये बोलने के लिए कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा. The next time he was asked the same question, he remembered the officer and said, I wanted to be a human being. Next time जब डैडी से ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनका आंसर बहुत ही अच्छा, सुंदर और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था. दैट आई वांटेड टू बी अ ह्यूमन बीइंग. मैं इंसान बनना चाहता हूँ, बड़ा होकर के मैं इंसान, गुड ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ. नो वन लाफ. और इस बार जब उनका आंसर आया, देन नो वन लाफ, कोई नहीं हंसा. And the little daddy understood that this was the best answer of all. और उसी समय लिटिल डैडी को ये बात समझ में आ गई that this was the best answer, that nobody could ever dare to laugh. He still thinks so. आज अभी भी वो सोच रहे थे. First of all, you have to be a good human being. This is the most important for a pilot and a shepherd or an ice cream man. अभी भी वो ये सोच रहे थे कि हमारे लाइफ का जो सबसे फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थॉट होना चाहिए वो ये होना चाहिए दैट वी शुड बी अ गुड
ह्यूमन बीइंग, हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. No matter what is your profession, whether you are a doctor, engineer, teacher, pilot, shepherd, ice cream man, whatever you are, but first you have to be a good human being. And after all, a human being does not really have to know how to scratch behind his ears with his food. और जब हम इंसान बन जाएंगे तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी that how we can scratch behind our ears with the help of our food. ये बात डैडी को अच्छे से समझ में आ गई. समझ में आया आप लोग सभी लोगों को स्टोरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt to anyone? Is there any doubt to anyone? No, ma'am. Okay. No, ma'am. So that's it for today's class. Again, we will meet tomorrow with some new chapters. But what will be your homework for today? So you have to learn all the question and answer. Means question number B and HOTS, life skill, value and writing skill. You have to learn all the question and answer of this chapter today in your homework. Okay? Okay, ma'am. Okay. So that's it for today's class. Again, we will meet tomorrow. Till then, thank you and have a nice day. Bye-bye to all of you. Bye, ma'am. Bye, ma'am.